जी आप सबका स्वागत भी करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिनका मार्गदर्शन इस केंद्र की स्थापना से हमें मिलता रहा है और लगातार उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की जो आप पूरे अगले 7 दिनों में जान पाएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में प्रोफेसर अविनाश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के स्पीकर हैं। साथ ही हमारे साथ अभी कुछ देर में हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव जैन जी जुड़े हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संभव हो सका है। वो इस मीटिंग में है, इस वजह से हमारे साथ अभी हमारे डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर नंदा जी जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारे केंद्र की निदेशक डॉक्टर निरंजना भंडारी मैडम जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। साथ में हमारे डिपार्टमेंट के मेरे कलीग्स डॉक्टर अरविंद ऋतुराज एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर अमिता गुप्ता, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर स्निग्धा राज और विभाग के सभी शोधार्थी, सभी विद्यार्थी और साथ में देश भर की जो शिक्षक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं इस 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसका शीर्षक है इंक्लूजन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले तो मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता हैं, उनका परिचय देना चाहूँगा और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर कपिल कपूर जी को भी हमारे साथ जोड़ना था बीच वक्ता के रूप में, लेकिन अभी वो केरल से कोई यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उनकी कोई तबीयत खराब हो गई है। कल शाम को उनका मैसेज आया था कि फिर भी मैं जुड़ूंगा, थोड़ी सांस लेने में Incall from folded hands got folded hands red heart identified by Truecaller. Incoming voice call from folded hands got folded hands red heart on SIM SIM1. Incoming voice call from folded hands. अब मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए सबसे मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो सरस्वती वंदना से। तो मैं आग्रह करूंगा मेरे विभाग की शोधार्थियों से कि वो सरस्वती वंदना शुरू करें।
जाऊं शारदा। धन्यवाद। Now I would like to invite Director of the Center, Professor Niranjana Bhandari Madam, to give the formal welcome address. नमस्कार सर। Honorable Vice Chancellor Professor Sanjeev Jain ji, Central University of Jammu, Vice Chancellor Professor Vedanath Labh ji, Sanchi University of Buddhist Indian Studies, distinguished guest Kapil Kapoor ji, respected Dean of Social Science, Professor A.K. Nanda ji, Sir, esteemed resource person and dear participant. It is my proud privilege to welcome you all to the Faculty Development Program on the theme Inclusion of Indian Knowledge System in Higher Education, being organized by Center for Comparative Religion and Civilization, Central University of Jammu. Being director of this center, it is also a matter of great joy to welcome you all to this program. The program is organized with the blessing of our respected Honorable Vice Chancellor. It is because of his deep interest and dedication to the cause of faculty members that this program is organized. I therefore extend a warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Sir. Honorable Vice Chancellor of Sanchi University, Professor Vedanath Labh ji, even though he was very busy, he could still join our program. Thank you, sir, and I welcome you also. I also welcome the staff of the center who work day and night to organize the program. Last but not least, I welcome the participants who are working in various educational institutions for whom this program is going to be of great help. We have called down eminent speakers from across Bharat who have dedicated their lives for Indian knowledge system, and these speakers are going to enlighten you about the importance of IKS in the problem-prone world of today. I hope you all will enrich your knowledge, and this FDP is going to be of great help in enhancing your understanding. I once again welcome you all and thank you very much. से पहले हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को सुनने से पहले कार्यक्रम की रूपरेखा के संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा आप सभी क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग को केंद्र के साथ भी परिचित हैं, हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के साथ भी परिचित हैं, लेकिन जैसा कि कार्यक्रम की मर्यादा के अनुरूप और थोड़ा सा कई लोग ऐसे लोग हैं जिनका परिचय नहीं होगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र की शुरुआत 19 जुलाई 2016 को 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के साथ हुई थी और आज ये केंद्र पिछले 8.5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रगति कर रहा है। आज हमारे पास 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें एक प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे विभाग के माध्यम से एक तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता विषय पर एक प्रोग्राम चलाया जाता है। ये अपने आप में पूरी दुनिया में कंपैरेटिव रिलीजन का भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में एक अद्भुत कोर्स है और भारतीय परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए इस कोर्स का निर्माण किया गया है।
सबसे पहले जो है एक अध्ययन अध्यापन के रूप में अध्येताओं के माध्यम से समाज में लाया जाए और फिर समाज के अंदर भी जन जागृति और चेतना दी जाए ताकि लोग समझ सके कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो अद्भुत जो ये ट्रेजर है ये कितना है, क्या है और इससे किन किन चीजों को आज के वर्तमान समय में हम किन किन उद्देश्यों की, किन किन समस्याओं को, किन किन चुनौतियों को पूर्ण कर सकते हैं। और ये बहुत हर्ष की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों पर उच्च शिक्षा में आप देखेंगे तो शिक्षक या शिक्षा के विभिन्न घटकों पर पूरे देश में चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलन, वर्कशॉप इत्यादि का आयोजन हो रहा है। और इसी क्रम में हमारे केंद्र ने भी ये जरूरी समझा कि इस विषय पर बात की जाए कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों में समाहित किया जाना क्यों आवश्यक है और उससे क्या दशा और दिशा देश की जो विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं या जिस विश्व गुरु बनाने की हम कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को साकार किया जा सकता है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। इसी क्रम में इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारा देश जो है वो उच्च मानवीय मूल्यों और विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। भारत की जो संस्कृति रही है उसने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस रूप में स्थापित हुई, किस रूप में उसको पूजा गया, उसका वेलकम किया गया। ये जो हमारे यहाँ एक सूत्र वाक्य है, अयम निजा परोवेति गणनालम चेतसाम उदार चरितानाम दशदैव कुटुंबकम। उपनिषद के जो ये महावाक्य है, इन महावाक्यों के आधार पर हम देखेंगे तो हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। और ये अलग बात है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी आपाधापी में हम भी गलती से समझने लगे कि सारी सभ्यताएं या ये सभ्यता जो है वो भौतिकवाद पर टिकी है, बल्कि हकीकत ये है कि ये सभ्यता जो है ज्ञान और अध्यात्म पर, भौतिकता के साथ ज्ञान और अध्यात्मिकता का समायोजन है। और इसीलिए भारत की परंपराओं का जहाँ आज पूरा विश्व अपना रहा है, हमें अपने लिए भी अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी प्राचीन मूल्यों को किस तरह यथोचित स्थान देना है, शिक्षा के अंदर किस तरह स्थान देना है, जिससे कि जो इसका आंतरिक ज्ञान है, जो इसके अंदर गुण है, जो शक्ति है और जो आदर्श है, उन आदर्शों को ठीक रूप से पहचाना जा सके, सही दिशा प्रदान की जा सके। और इसीलिए प्राचीन भारत में चाहे वो दर्शन हो, चाहे हमारी जो ध्यानात्मक भाषा विज्ञान की शैली रही है, जो हमारा व्याकरण रहे हैं, चाहे हमारा खगोल विज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो, सांख्य के जो सिद्धांत है, जो लॉजिक से रिलेटेड सिद्धांत है, जो जीवन से संबंधित विज्ञान है, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो या संगीत हो, ऐसे तमाम जो विभिन्न विषय हैं, ये सारे विषयों ने इस तरह मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना की और मानव जाति की उन्नति में कितना बड़ा योगदान किया है। तो इसीलिए प्राचीन भारतीयों द्वारा जो अविष्कृत विचार रहे, जो तकनीकी रहे, उन तकनीकियों का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूलाधार को दृढ़ करने में कितना बड़ा योगदान रहा है, इसको समझने की दिशा में भी ये कार्यशाला का समायोजन किया गया है। और इसीलिए इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि इस कार्यशाला के माध्यम से चाहे वो वैदिक परंपरा हो, चाहे श्रमण परंपरा हो, चाहे लौकिक परंपराएं हो, यानी कि चाहे पाली संस्कृत का साहित्य हो, पाली प्राकृत का साहित्य हो या अन्य भाषा और साहित्य हो, उनका क्या योगदान रहा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी की जो परंपरा रही है वो कितनी विकसित रही है, वो कैसे विज्ञान को आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा योगदान दे सकती है। तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य का क्या रोल रहा है और उसके साथ ही साथ योग और अध्यात्म का क्या रोल रहा है, इन सब आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपने जो 10 सालों दिन के जो दो सेशंस का डिटेल भेजा है उसके विषय भी हमने चुनने की कोशिश की है कि इन 7 दिनों में कम से कम आपको जैसे कहते हैं एक विहंगम अवलोकन कराया जा सके और जिसमें क्यूरियोसिटी होगी वो उसमें रिसर्च कर सकता है, उसमें अपने विश्वविद्यालय में नए नए कोर्स से अपने पाठ्यक्रमों में चल रहे पाठ्यक्रमों के किसी हिस्से में उसको भी शामिल कर सकता है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने आज का ये कार्यक्रम और
से पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि बार बार जैसे कहते हैं ना कि जब घर के सदस्य सामने बैठे हों और उनकी जीवन की जो पूरी की पूरी अकादमिक जगत में जो योगदान है उसकी लंबी श्रृंखला है, उसको कुछ एक मिनटों में कुछ एक शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप सबने सुना, प्रोफेसर बैद्यनाथ सब वर्तमान की सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के माननीय कुलपति है। इससे पूर्व आप नौ नालंदा महाविहार भारत सरकार का एक गिफ्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसके आप कुलपति रहे हैं। साथ ही साथ आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के माननीय कुलपति रहे हैं। आप देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय नेत्रहाट रेजिडेंशियल स्कूल के बहुत ही मेधावी मेरिटोरियस छात्र रहे हैं, जिसमें कि प्रवेश पाना ही अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जिन लोगों को इस विद्यालय की जानकारी होगी उनको पता होगा। सर ने इतिहास विषय में अपनी स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की, प्रथम स्थान के साथ आपने एमए किया बुद्धिस्ट स्टडीज में, और आपने रिकॉर्ड मार्क्स से पूरे विश्वविद्यालय में 56 से लेकर जिस साल सर ने पास किया था उस तक सबसे अधिक नंबरों से आपने एमए बुद्धिस्ट स्टडीज की डिग्री हासिल की। आपने एमफिल और पीएचडी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। आपकी पीएचडी थीसिस जिसका टाइटल था पहिया फिलोसॉफिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू विशुद्धि मत, जो 1987 में आपकी पीएचडी पूरी हुई, जिसके ऊपर एक पुस्तक भी छपी 1991 में, पहिया इन अर्ली बुद्धिज्म। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर के अकादमिक कैरियर की शुरुआत एक लेक्चरर के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुई थी, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जम्मू को आपका सानिध्य मिला, आपके विद्वता का मार्गदर्शन मिला, और आपकी 20 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं, 100 से ज्यादा शोध आलेख दुनिया भर के प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हैं। आपके अंदर कई स्कॉलर्स ने पीएचडी की उपाधि, पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि प्राप्त की। भारत के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, आप इसके संस्थापक सचिव रहे हैं, और इसके अलावा आपको कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रभाषा सम्मान जो जम्मू कश्मीर द्वारा दिया गया, जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 2009 में प्रदान किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट योगा एंड सोशल सिक्योरिटी न्यू दिल्ली द्वारा आपको दिया गया। आपको धर्म विभूषण सम्मान भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंसेज चंडीगढ़ से प्रदान किया गया। इसके साथ ही आपको 2005 में श्रीलंका से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त है, और अनेक सम्मान प्राप्त है। लेकिन अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप जैसे विद्वान के मार्गदर्शन से हो, ये चाहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन अजय जी, ये आवाज तो पहुंच रही है ना? जी सर, जी सर, जी आ रही आवाज सर, क्लियर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे प्रिय मित्र और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन जी, इन एब्सेंटिया ऑफ कोर्स because he is not presently available here, लेकिन मेरा उनको प्रणाम नमस्कार। पूरे जो आपका सेंटर है कंपैरेटिव रिलीजन, और अजय जी मेरे पुत्रवत हैं, सारे अश्विनी जी हैं, सभी पुत्रवत हैं मेरे, और बहुत ही मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये लोग लगनशील हैं, लगे हुए हैं, अरविंद राज जी हैं, और अन्य सभी लोग, सभी पार्टिसिपेंट्स। एक विषय जिस पर हम लोग काफी चर्चा करते रहे हैं देश भर में, जो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा था,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक समय समय पर शिक्षाविद अपनी अपनी बातें करते हैं और शिक्षा को नई दिशा देने का यत्न करते हैं। तो ये एक जो बात आई, इसमें क्या खूबी है कि हमें एक नई शिक्षा नीति लेकर के आना पड़ा। 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके बाद से विदेशी आक्रांताओं का शासन यहाँ चलना शुरू हुआ। पहले तर्क अफगान आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए। तो समाज तो आगे बढ़ता रहा, ज्ञान भी बढ़ता रहा। नहीं कह सकते कि ज्ञान कहीं रुक गया, ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन 190 वर्षों की जो गुलामी हमारे पास रही ब्रिटिश आधिपत्य के कारण, 1757 से उसकी पराजित हुआ। Incoming call from official central by Truecaller. गलत डाल दी गई कि देश जो कहता है वही लगता है, देश जो कहता है वही ज्ञान है। और हम सब इतने रूप से यद्यपि राजनीतिक आजादी हमको 1947 से मिल गई, लेकिन एक सांस्कृतिक और बौद्धिक जो पराधीनता हमारी हो गई, उससे हम आज तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। तो एक मानक बन गया कि हमें अपनी ही चीजों को हीनता की दृष्टि से देखना है। हम आज भट्ट को भूल गए, नागार्जुन को भूल गए, ब्राह्मीण को भूल गए और जितने हमारे जीवक को भूल गए, चरक को भूल गए, सुश्रुत को भूल गए। और हमने ये मान लिया कि उनकी जो स्थापनाएं थी, उनके जो आविष्कार थे, उसको अगर वेस्ट कह देता है कि हाँ ये बहुत अच्छा था, या उन्हीं आविष्कारों का फिर से नए, जिसको कहते हैं कि कहावत है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो ये ओल्ड वाइन को नए बोतल में परोसने का काम जो उन्होंने किया, उसी को हमने प्रामाणिक मान लिया। आज भी अगर हम लोग देखते हैं कि हम कुछ भी बात कर लें, तो हम कोई लेख लिखते हैं, कोई शोध लेख लिखते हैं, तो उसमें उम्मीद करते हैं कि कोई बेस्ट का अगर कोई मतलब बहुत ही साधारण भी कोई चिंतक है, लेखक है, उसको हम कोट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसकी हमारी प्रामाणिकता बढ़ गई। यह जो एक सांस्कृतिक पराधीनता है हमारे अंदर आ गई, वो एक ऐसा खतरनाक जिसका ट्रेंड हो गया, इसका हाल वर्षों तक हमने अपने ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को देखा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस चश्मे से देखने की, अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही स्थापनाओं को, अपने ही आविष्कारों को डिनाई करना या अंडरमाइन करना, ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम लोग जो अभी हमारे जो शिक्षा नीति बनानी पड़ी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यही बात आई है कि आखिर हमको तो कि हमें क्यों अपने ढंग से शिक्षा को देखने की आवश्यकता है। एक तो हमारे देखिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हमें सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो विमुक्ति देती है। और विद्या कैसे आती है, तो सबसे पहले उसका सुखान है, प्रथम सुखान है उसका साक्षरता। सबसे पहले हम साक्षर बनते हैं, तो हमें पढ़ने का या हमारे जो अपनी पुरानी पुस्तकें है, नवीन पुस्तकें जो भी है, हम हमारी पहुंच वहां तक हो पाती है, हमारा एक्सेस वहां तक हो पाता है और हम उसमें जान पाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो
के आविष्कार किए या अन्वेषण किए, उन्होंने अपनी क्या क्या बातें लिखी है, क्या क्या स्थापनाएं की है, हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले जो विद्या है वो शिक्षा से शुरू होती है, क्योंकि दोनों शब्द हम लोग कई बार बहुत ही अक्सर लेते हैं, विद्या शब्द भी बोलते हैं और शिक्षा भी लेते हैं। शिक्षा तो है शिक्ष धातु से है, जिसका अर्थ है सीखना। विद्या है विद्य धातु से, जिसका अर्थ है जानना। तो सीखने से हम जानते हैं, दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हुए हैं। कि उसमें हमें क्या होता है कि जब सबसे पहले तो हमें निरक्षरता से मुक्ति मिलती है, और निरक्षरता से मुक्ति जब मिलती है तो धीरे धीरे हम अपनी पुस्तकों को या उसके माध्यम से जो हमारे पास संकलित साहित्य है, चाहे वो वैज्ञानिक साहित्य हो या धार्मिक साहित्य हो या दार्शनिक साहित्य हो या सांस्कृतिक साहित्य हो या राजनीतिक साहित्य हो, कितने प्रकार के विधाएं हो सकती है, हम उन तक पहुंच पाते हैं और उनमें निहित बातों को समझ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो विद्या का एक आंतरिक सोपान है, वो निरक्षरता से हमें मुक्ति दिला करके साक्षर बनाते हैं। लेकिन क्या हम साक्षर बनना ही काफी है हमारे लिए? क्या उन चीजों को हम केवल किताबों को पढ़ लें तो उससे क्या हम विद्वान हो जाएंगे? क्या हम शिक्षित हो जाएंगे? तो शिक्षा का अर्थ हमारे यहाँ भारतवर्ष में या भारतवर्ष के दृष्टिकोण से और बहुत व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने अज्ञानता से अपने आप को दूर करके चरित्रवान बने, और चरित्रवान बन करके जो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि 84 लाख योनियां हैं और उसमें एक मनुष्य योनि है जो सर्वोत्तम है, उसी के पास बुद्धि और विवेक है। थोड़ी बहुत बुद्धि तो सबको है, सभी जानवरों में है, सभी जंतुओं में है, लेकिन कल को क्या करना है, भविष्य की योजनाएं क्या है, हमें कैसे प्लान करना है, ये बुद्धि ये विवेक केवल मनुष्य के पास है। तो जब हम इस दृष्टि से श्रेष्ठतम प्राणी है, तो हमने यह भी सोचा कि ये जो जन्म है बस इतना ही है या इसके अलावा भी कुछ है। इसी में विभिन्न जो परंपराएं हैं, चाहे वो भारत की परंपरा, वैदिक परंपरा रही हो या श्रमण परंपरा रही हो या चीन की सभ्यता रही हो, मिस्र की सभ्यता रही हो, माया सभ्यता रही हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, विश्व के ईरान की सभ्यता रही हो, तो विश्व के जितने भाग हैं उनमें मनुष्य इतना चिंतनशील हुआ, क्या जो हमारा जीवन है यही सब कुछ है या इसके पूर्वापर भी कुछ है, इसके पहले भी कुछ था, आगे भी कुछ है। इसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विवेकशील, सबसे अधिक प्रखरता को प्राप्त किया इसने, और इसमें एक कहा कि नहीं, यही केवल मुक्ति नहीं है या केवल यही एकमात्र सत्य नहीं है। और इसके बारे में अगर और मैं विस्तार से कहूँगा तो बहुत विस्तार में हम चले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे से बताओ भी हो जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार की स्थापना हुई तो यह भी हुआ कि भाई पूर्व जन्म में क्या थे और इस जन्म में ऐसा क्यों हुए, ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति कम मंद बुद्धि होता है, कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई बहुत धनी होता है, कोई बहुत गरीब हो जाता है, कोई अपंग रूप में हो जाता है, कोई बहुत तरह से संपन्न हो जाता है। तो कई थ्योरीज आई और इसमें कर्म की थ्योरी दी गई। जब अच्छा कर्म अगर पूर्व जन्म में किया है अगर, तो उसका प्रतिफलन हमें वर्तमान जन्म में मिला, और इस जन्म में अगर हम कुछ करेंगे अच्छा तो अगले जन्म में भी हमको उसकी सुफल या खराब फल मिलेगी, फल मिलेगी। तो ये चाहे भारत के संदर्भ में हम और आ जाते हैं, तो उसमें चाहे वो वैदिक परंपरा हो, सनातन परंपरा हो या श्रमण परंपरा हो, सब जगह कर्मों को माना गया है। तो कर्म की आवश्यकता क्यों है? अच्छा कर करेंगे। और अच्छा करने का क्या होता है? क्या केवल अपने लिए अच्छा करना या अपने जो परिकर व्यक्ति है, वातावरण है, समाज है, उसके लिए अच्छा करना? इसे भारत में शिक्षा की बात जब विद्या की बात आई तो उसको केवल अपने तक सीमित ना रख करके
आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म सबका मूल है और अर्थ जो हम अर्थ उत्पादन करते हैं उसका जो हमारा दुनियावी चीजें आवश्यकताएं हैं, अर्न करना है, सब कुछ करना है, वह काम, चाहे वो कामना के अर्थ में हो, चाहे वो फिजिकल नीड के अर्थ में हो, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष हो कि हम ये दुनिया के जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, इससे मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करें। तो इन सबके मूल में और हर चाहे वो चारों के चारों में धर्म तो अपना अलग है ही, लेकिन धर्म हर चीज है, काम के साथ भी धर्म है, अर्थ के साथ भी धर्म है, मोक्ष के साथ भी धर्म है। तो धर्म एक साधन है, धर्म के बगैर अगर हम कुछ करते हैं तो वह उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी कहा गया कि अगर हम अर्थोपार्जन करते हैं तो उसका एक चतुर्थांश या पंचमांश हम स्वयं एक परहित के लिए रखें। वो अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे अर्थोपार्जन का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स यूजलेस। तो हम स्वयं वॉलंटरली समाज के लिए सोचें, ये हमारी विद्या है, हमारा चिंतन परंपरा है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उसका एक अविभाज्य है, उसका एक बिल्कुल ही ऐसा कंपोनेंट है जिसको तो इसलिए इसलिए कहा गया कि हम समाज के लिए सोचें, ये हमारे शिक्षा का एक मीनिंग आएगा उसमें। तो भारतीय जो शिक्षा पद्धति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके मूल में ये कि हम लोग इस बात को स्मृति हमने मिटा दिया है, इस बात को भूल चुके हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा लगता है कि पैदा हुए, बीए किए, नौकरी मिली, पेंशन पाए और मर गए। इस तरह का जो एक एटीट्यूड है बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, संक्रमण रोग की तरह से। तो should we remain confined to this sort of thinking, or should we have a broader concept in which we can think of others, think for others also? तो ये एक बहुत बड़ा मूल है भारतीय शिक्षा नीति के मूल में कि हम दूसरों के लिए सोचें, और अगर दूसरों के लिए सोचेंगे तो ये बात आ जाएगी कि एकोमोडेटिवनेस जिसको कहते हैं या जिसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, कि भाई हम भी जिए, आप भी जिए और एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे का हित चिंतन करें, तो हम ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी सकेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब ये अमृत मंथन हुआ, तो अमृत मंथन के टाइम में चीजें भाई एक अमृत जब आया तो ये झगड़ा होने लगा देवताओं और में कि हम लेंगे तो हम लेंगे। तो अंत में हुआ कि भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया मोहिनी का और कहा कि बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, कहा कि अमृत सबको मिलेगा। उन्होंने ब्राह्मणों ने परिश्रम किया है और देवों ने भी किया है, तो दोनों को मिलेगा, मिलने का हक है सबको। लेकिन एक शर्त है कि अपनी बात कोई नहीं बोलेगा, सबके पत्तल पर परोस दिया जाएगा, सबकी थाली में डाल दिया जाएगा अमृत, लेकिन बात नहीं बोलना है। और कहा कि बोल न ले, तो बात में वो लगा दिया गया ऐसा कुछ कि वो केवल बोल नहीं सके। और कहा कि खाओ अमृत लो। तो जो दानव लोग थे वो उन्होंने क्या किया कि बस वो खा ही नहीं पाए, बस उनके इधर उधर हो गया। और देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया। तो उनको भी नहीं बोलना था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। तो वो देवत्व का रास्ता है और भारत ने इसी देवत्व को समझा है। इसी को कहा है कि हम दूसरे का भी, अपना तो चिंतन करें, लेकिन केवल अपना नहीं करें, दूसरों का भी करें। ये
महर्षियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतने आविष्कार किए, चाहे वो सर्जरी के क्षेत्र में हो या मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में हो, उन्होंने इस बात को हमेशा सोचा कि आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग फॉर वाइजन फन, इट शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो वो एक बहुत बड़ी ऐसी चीज थी जो हमारे चिंतन परंपरा के शुरू से चली आ रही है, और जब जब इसमें हानि होती है, जब जब इसमें व्यतिक्रम आता है, जब जब इसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, तब तक समाज में अनरेस्ट होता है, हम एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। मैं क्योंकि बुद्धिज्म का विद्यार्थी हूँ, तो वहां पर भगवान बुद्ध ने चित्तों की बात की, चित्त, कॉन्शियसनेस। तो हमारे और कॉन्शियसनेस जो है, हमारा चित्त जो है, वो चिंतन जो करता है उसको चित्त कहते हैं। तो चिंतन कैसे करता है? कोई बुरा भी करता है, अच्छा भी करता है। हम ही दयालु भी हैं, हम ही निष्ठुर भी हैं, हम ही जो है बेशर्म भी हैं और हम ही शर्मीले भी हैं, हम ही क्रूर भी हैं, हम ही दयावान भी हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके प्रकार के उन्होंने 52 प्रकार के चेतसिकों की बात की, साइकिक फैक्टर्स। वो साइकिक फैक्टर जो जब हावी होते हैं, हम उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं, बुरे अच्छे। तो हमेशा वो तो फैक्ट है कि हम अच्छे भी और बुरे भी, बट वी शुड ट्राई टू डू गुड एंड गुड ओनली, वी शुड मूव टुवर्ड्स गुड एंड गुड फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स। ये हमारी चिंतन परंपरा का, हमारी ज्ञान परंपरा का एक अविभाज्य अंग है, जिसके ऊपर हमेशा एक बात कही गई है। दूसरी बात एक और कही गई है कि हमारी इसमें कि जो मैंने 190 वर्ष की गुलामी की बात कही और जो सांस्कृतिक गुलामी कभी भी चली आ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है आजकल, वेरी सॉरी टू से, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे अपने घर पे लिखकर देखते हैं, करते हैं कि चाहे हम डोगरी स्पीकर्स हों, पंजाबी बोलने वाले हों, हम उर्दू वाले हों, हम मैथिली वाले हों, हम भोजपुरी वाले हों, तमिल वाले हों, बंगाली हों, हम लोग सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से विमुख करते हैं कि नहीं, अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे घर में भी, हमारा बच्चा बैकवर्ड रहेगा। तो हम उसको सोचते हैं कि जन्म पैदा भी होगा अंग्रेजी में, उसके हुए आज अंग्रेजी में ही हो या अंग्रेजी में से, उसका नतीजा क्या निकलता है? आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हम लोग अपने बच्चे को एक भाषा से ही महरूम नहीं करते, बल्कि एक कल्चर से, संस्कृति से महरूम करते हैं। हमारे घर में मान लीजिए जम्मू क्षेत्र में आप हैं, लोहड़ी होती है। अब लोहड़ी क्या है? हमारा बच्चा जो हमको मान लीजिए तमिलनाडु में, जम्मू छोड़ के चले गए तमिलनाडु, हमको वहाँ का पोंगल बना लिया या ये क्रिसमस अपनाना तो कर लिया, ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, ईसा मसीह की हमारे नहीं पूजनीय हैं, जितना मोहम्मद साहब हैं, जितने कृष्ण हैं, जितने बुद्ध सब हैं, तो सभी महापुरुष के देवता थे, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन क्या हम दूसरे को तो अपना लेते हैं, अपनी चीज छोड़कर, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और आइडेंटिटी खो जाने से हम कोई बहुत बड़े आदमी की नहीं मार पाते या हमारी कोई बहुत श्रेष्ठता बन जाती है, ऐसा भी नहीं। अपनी आइडेंटिटी, अपनी भाषा ही उतना ही आवश्यक है। हमारा बच्चा चिंता मत कीजिए, आप अगर घर में अपनी डोगरी बोलते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखेगा, हिंदी नहीं सीखेगा। जब स्कूल जाएगा, जब कॉलेज जाएगा, तो अपने आप सीखेगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आपने ये भाषा उसको नहीं सिखाया तो उससे कट ऑफ, फिर आपका जब बच्चा बड़ा होगा तो कहेगा आपके गांव को, अरे वो पापा का गांव है, वो अपना गांव नहीं है, ये पापा की भाषा है। ये जो है ये कट ऑफ करने उसको, ये दिस इज वेरी डेंजरस। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि जो जहां है, इस एरिया में अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएं।
की आवश्यक नहीं है प्राइमरी स्टेज पर। और अगर अपनी भाषा में बात करेगा, अपनी भाषा में सीखेगा, अपनी भाषा में उसकी पढ़ाई होगी तो वो जड़ से उठाई जुड़ा है, वो रूटलेस नहीं हो। एक पतंग को हम उड़ाते हैं तो क्या होता है, पतंग कितना भी ऊपर उड़े, लेकिन अगर उसकी डोर अपने हाथ में है तो पतंग फिर को समेट सकते हैं। लेकिन पतंग की अगर डोर कट गई, पतंग कहाँ जाएगी, कोई नोबडी नोस। इसलिए हम उसको अपनी डोर को, वो संस्कृति रूपी डोर जो है, हमारी भाषा रूपी डोर जो है, उसको पकड़ कर रखना है और ग्रेजुअली अन्य भाषा भी सीखेंगे। अब सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक गांव विश्वविद्यालय जो है खास जम्मू शहर से दूर है, लोकल लैंग्वेज डोगरी है, तो जो छोटे स्कूल होंगे डोगरी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए जम्मू शहर में आ गए, जम्मू में हो सकता है कोई बाहर के भी लोग आ रहे हो, वहां पर सबके लिए ऊपर डोगरी लागू नहीं, तो उससे बात क्या हो सकता है, हिंदी। तो हिंदी में अगर करेंगे तो नियरेस्ट टू डोगरी होगी। इसी प्रकार से ये इसी तरीके में केस ऑफ अदर लैंग्वेज आल्सो। तो ये अपनी भाषा या मातृभाषा या उसके निकटस्थ भाषा हो, उसमें शिक्षा की बात हो, तो ये माध्यम की बात आ गई। दूसरा, आप देखिए कि एक जिस स्टेज पर कई सारे स्टेजेस बनाए गए हैं कि वो बच्चा पढ़े और तुरंत उसको फेल पास करके, ये जो हम लोग बच्चों पर दबाव डालते हैं कि 99% बच्चा लाता है कि नहीं, उस 99% के चक्कर में बच्चों का भविष्य, बच्चों का बचपन छीने, उसको बच्चे को पता नहीं चलता कि शाम हुई कि सुबह हुई, वो आता है और बस होमवर्क लग जाता है। और आजकल तो ऐसा स्कूल में इतना इम्पोज कर दिया गया है उसको, ये प्रोजेक्ट बना कर लाओ, वो प्रोजेक्ट की दुकानें खुल गई, क्या प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, या तो बच्चे के पेरेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, मेरा बच्चा 99% लाए, तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है, तो उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है और वो नॉलेज से महरूम हो जाता है। तो ये एक जो है कि ग्रेजुअल उसको अलग अलग स्टेज पर देना। फिर आपका जैसे केज एक आया कि मान लीजिए ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हुआ प्लस 1 ईयर ग्रेजुएट, फिर पीएचडी वगैरह वगैरह, तो उसमें ये भी एक आ गया कि अगर मान लीजिए 1 साल के बाद किसी वजह से, बच्चे गरीबी वजह से या किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, यहाँ का नहीं दूसरे के बच्चे सारी पढ़ाई बेकार हो गई, या उसको कुछ उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसको मान लीजिए सर्टिफिकेट दिया, डिप्लोमा दिया या डिग्री दिया, इस तरह की बातें जो आई हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी पहल है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। देखिए हमारे प्राचीन काल में इसी भारतवर्ष को पाकिस्तान में चला गया विश्व का प्रथम फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला। तक्षशिला कोई बहुत संगठित विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप नहीं हो पाया, बिल्कुल परंपरा थी, लेकिन वो है प्रथम संगठित विश्वविद्यालय के रूप में आया, वह नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना 425-426 ईस्वी के आसपास हमने की थी और वो 600-700 साल तक विश्वविद्यालय चलता रहा और 12वीं शताब्दी का हिंदी के अटैक से नष्ट कर दिया गया। और ये उसी बीच में कई सारे विश्वविद्यालय और खुले, नालंदा के उसी का जो नया रूप है नव नालंदा महाविहार, जिसका दायित्व मेरे पास था 5 वर्षों तक। फिर उसी के पास उदंतपुरी यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, आपके बांग्लादेश में अभी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, सोमपुर बिहार था, जगद्दल बिहार था, उड़ीसा में पुष्पगिरी बिहार था, आपके गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था। इतने सारे विश्वविद्यालय थे, इतने सारे, और केवल जैसे नालंदा में ऐसा नहीं था कि केवल हायर लर्निंग, मैट्रिकुलेशन जो आजकल जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड बच्चों की पढ़ाई की। Incoming call from Folded Hands. Got Folded Hands. Red Heart identified by Truecaller.
Incoming voice call from Folded Hands. God Folded Hands Red Heart on SIM SIM1. Incoming voice call from Folded Hands. God Folded Hands Red Heart on SIM SIM1. और उसमें स्किल की बात भी है। यहाँ पर टिबेट नदी की पढ़ाई थी, नालंदा जो लोग गए आप में से कुछ लोग गए होंगे और जो लोग नहीं गए कभी मौका मिले, वहाँ के जो डर है अभी घटना विशेष है, वो पूरी पूरी विश्वविद्यालय का नहीं है, बहुत छोटा सा अंश है, क्योंकि शेरशाह जब 7वीं शताब्दी में आया था, उसने लिखा कि वहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 शिक्षक, 11,500 जो 11,500 का जो खंडर है उसमें वो नहीं हो सकता, कई सारे गांव बस गए इतने 100 सालों में, तो वहाँ पर आपको एक फंगस मिलेगा, अभी भी उसका है कि जहाँ पर आगे वो गला करके और चीजें बनाएगा, तो ये कोई किसी अंग्रेज ने नहीं किया, और हमारे प्राचीन शास्त्र में था। चरक सुश्रुत और जीवक की बात हम करते हैं, कैसे उसमें सर्जरी करते थे, इसके जीवन के बारे में पढ़ने के लिए एक आदमी के जो माइग्रेन था और उसको कोई प्रॉब्लम था, तो उसका उसने सब फाड़ करके और सब सील दिया। सुश्रुत के बारे में आती है, चरक की बात आती है, ये कोई आज के वैज्ञानिक है, आज के डॉक्टर्स नहीं थे, वो हमारे प्राचीन काल के थे वो, और उन्होंने भारत के गौरव को आगे बढ़ाया। आप आत्महत्या की बात करते हैं, शुभ आविष्कार, आप पूरा सिस्टम या प्रणाली जो है वो हमारी देन है, तो ये हम सबके लिए गर्व करने की बात है, और गर्व करके उस पर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट का रीजनरेशन है होना चाहिए, और ये सारा हमारा जो आईकेएस है वो इस चीज पे भी दे रहा है, उसके जो डेट्स बनाए जा रहे हैं उसमें कोई एक नहीं केवल बुद्धिज्म में तो बुद्धिज्म ही रहे, या हिंदुइज्म में तो हिंदुइज्म ही रहे, सिखिज्म में तो सिखिज्म ही रहे, जैनिज्म जैनिज्म ही रहे, सबको सबको इंटीग्रेट करके चले कि ये कैसे सबने मिल करके भारत के ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उसने जो अभी अजय जी ने शुरू में कोट किया था, अयम निज परो इति गणना लक्षित नाम दार चरिता नाम प्रेम कुटुंब का हमारा दार चलते ही रहा है, इसमें हमने पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझा है, इसलिए हमने अनंत विश्व आदमी की बात की, पूरे विश्व को हमको इनलाइटन करना है। हमारी जो कंबोडिया गए, कंबोडिया में कहा जाता है कि वहाँ के लोग वस्त्र नहीं थे और वहाँ की राजकुमारी आई तो वो निर्वस्त्र थी, और ये उसको कवरेज दिया, हालांकि थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन इस तरह से हमने किया। एक व्यक्ति भारत को खोजने के लिए आया कि वो भारत खोजने के लिए आया, भारत में खोया हुआ थोड़ी था, भारत कोलंबस ने जो खोजा है या वास्को डी गामा, उसने पुर्तगाल से कैसे आप सुना है, तो भारत को नहीं खोया, भारत में क्या खोजेगा, भारत हम प्राचीन काल से बहुत ही हजार वर्ष से हैं, उन्होंने खोजा, उन्होंने अपना रास्ता खोजा, भारत कैसे पहुंचे, भारत वाज नेवर लॉस्ट, he had a relation and culture locally going on, ये हम सबके लिए एक आत्म गौरव का विषय होना चाहिए, और जो आईएएस है उसी इसको रीजनरेट करना चाह रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को देना चाह रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम जीते सबके, हमने कभी किसी को अटैक नहीं किया, कई बार चलती है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इन बातों को समय लगता है, अधिक हो गया है, तो मैं इन्हीं बातों के साथ जो बातें जो मेरे स्टेज हॉस्ट थे उनको मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं, और मैं आपका जो विभाग है सेक्टर है कोऑपरेटिव रीजन का, जिसका उद्देश्य ही है विभिन्न धर्मों और विभिन्न जो दार्शनिक परंपराएं हैं
करके चले और हम एक भारत को समग्र रूप में देखने का यत्न करें और उससे हमारी जो शिक्षा की समग्रता है वो हमारे सामने आए। तो ये आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे अवसर दिया अपने विचारों का आपके साथ साझा कर सकूं। तो इसलिए दिल से बहुत बहुत आभार आप सबका। सरस्वती महोदय का भी आभार, अजय जी और उनकी पूरी टीम का भी आभार, उनके विभाग का भी आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो विचारसरणी है ये आवाज से चलती है। धन्यवाद सर आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और हम सब की जितने भी प्रतिभागी हैं उनके अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर एक कह सकते हैं ऐसी क्यूरियोसिटी डेवलप करने की आपने एक बड़ी अच्छी कोशिश भी की और उनको गहराई तक ले जाने का प्रयास भी किया। और इतने कम समय में ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ बातों को लगातार सुनते रहना चाहिए। और आखिर में जो आपने कहा कि पूरे दुनिया को आर्य बनाने की, तो उसका भाव यही है कि हमें पूरी दुनिया को ऐसा बनाना है जिससे कि पूरी दुनिया इस समन्वयवाद को जिसको लेकर भारत में ब्राह्मण आगम वैदिक सारी परंपराएं चलती रही और जो ज्ञान सिर्फ आज के लिए ही नहीं सर बल्कि आने वाली हजारों पीढ़ियों तक के लिए वो उतना ही मतलब जिसको कहते हैं रिलेवेंट है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो आज से 1000 साल पहले भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि और गुरुवानों ने हमेशा यही प्रयास किया कि वो अपने लिए सिर्फ चिंतन नहीं करते थे बल्कि वो पूरा समाज उसमें समाहित था, समाज का कोई भी व्यक्ति न छूट जाए। जैसा कि सर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के आलोक में हमारी जो प्राचीनतम भारतीय ज्ञान विरासत परंपरा और शिक्षा पद्धतियां हैं, सनातन मूल्य है, जो समान मूल्य है, उन सबको आधुनिक शैक्षणिक पद्धति और व्यवस्था में कैसे अभिसिंचित करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक और उपनिषद काल में बहुत न्याय काल रही उसको पिछले 200-300 वर्षों में कैसे तहस नहस किया गया उसके ऊपर भी सर ने ध्यान रेखांकित किया। और सर की पूरी बात का अगर हम सार लिखते गए तो सर ने यही समझाया कि अध्यात्म को विज्ञान से, परमार्थ को व्यवहार से, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए कैसे व्यक्तिगत सामाजिक और वैश्विक जीवन में समरसता के लिए एकता के सूत्र खोजे जा सकते हैं। इसकी तरफ सर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। और साथ ही साथ जो कहा गया ऋग्वेद की ऋचा में आनो भद्रा कर दो यंतु विश्वता, यानी सात्विक विचार जहां से भी आता है लेकिन वो विचार समसामयिक भी हो और आने वाले समय में, जैसे कि अगर हम परमाणु बम का निर्माण करते हैं लेकिन उससे मानवता कितनी खतरे में है, तो हमारा विचार कभी ऐसा नहीं रहा। हमारा विचार हमेशा ऐसा रहा जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कैसे कल्याण हो सकता है। तो सर आपके इस उद्बोधन के लिए हम सब केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने कुलपति महोदय की तरफ से, अपने निदेशक महोदय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं अविनाश कुमार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेसर अविनाश कुमार जी. Avinash Kumar ji is a consultant who has offered professional advice to Fortune 100 clients across their global locations. He was always attracted towards and inspired by the teaching of Gita. He began studying Gita almost 2 decades back and slowly started to enjoy and live it in its philosophy. As he interacted with more readers of Gita, he realized that several people commence their journey into Gita, but give up much overwhelmed and often intimidated by its esoteric mold. Slowly and slowly, the conviction to craft an easy to comprehend version of Gita started building within him. And in last 10 years, he developed and he devoted himself to reproducing Gita in a simple Hindi poetic form. The idea was to present a version of Gita that is easily understood and also able to retain the interest. Sahaj Gita is culmination of his several years of commitment and complete surrender to divine.
that voting for this super task. So sir is going to deliver his thought on relevance of Gita and why study of Gita, research on Gita is very much important in higher education institutions. So without taking much time, now I would like to request Professor Avinash Kumarji to deliver his thoughts. नमस्कार आप सभी को विशिष्ट जनों को और अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को करने के लिए। तो जैसा कि अजय जी अभी मेरा जीवन समर्पित है गीता के दिव्य ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे आदरणीय वैद्यनाथ जी बता रहे थे हमारी अपनी संस्कृति में इतनी रिच लेगेसी है, इतनी धरोहर है और हम उनको भूलकर बाहर के उपायों में अपने आप को खो देते हैं कैसे हमें आराम मिले। तो मेरा अब जो व्यावसायिक जीवन रहा है सारी दुनिया में एज अ कंसल्टेंट रहा है, मैं ग्रेजुएट रहा हूँ IIT कानपुर का, IIM बैंगलोर का, तो मेरे को बहुत अवसर मिला दुनिया भर में काम करने का और फिर लगा कि अगर हम बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो ये एक छोटी सी जिसे हम बोले निदान क्यों नहीं दे सकते कि जनमानस को गीता के संदेश को पहुंचाएं। तो जो मैंने कार्य किया है उसकी एक छोटी सी झलकी वीडियो द्वारा देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपने विचार साझा करूंगा कि मोर इम्पोर्टेंट की एजुकेशन में गीता का क्या महत्व है और आज के युवाओं को गीता का परिचय देना इतना आवश्यक क्यों है। तो मैं चाहता हूँ अभी एक वीडियो शेयर करूँ। जी सर प्लीज गो अहेड। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर जी जी सर जी। और ऑडियो भी ठीक है सर? ओके या इट्स ओके सर। चाय वाय की व्यवस्था है ना? हमारा चेहरा वीडियो मारा है तो पूरे आ गए। चाय तो अभी ऑर्डर लेके गई मुझे खाओगे तो खाने के लिए मंगा ले समोसा मेरे को घर जाना, मेरे को घर जाना। वो वीडियो में ऑडियो भी होगा ना, कब टाइप करें क्या? ऑडियो नहीं आ रही है। वो बोल तो नहीं रहा यार। बोलो ऑडियो में सीधा बोलो। गीता को एक गीत की भांति पढ़े। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कन्वे धीरास्ते मां फलेषु बलात् मां फल हेतुर्भुः। ये है भी नॉर्मल में तो यही है। 1 घंटा 14 मिनट हो गया। रमाकांत पांडे सर नहीं ऐसे अकेले कर देंगे। मेरा ना वो रेफरेंस स्टेशन समोसा है ना, सब खत्म हो गया। मुझे नहीं करना। मुझे दे दो। ओके नहीं मुझे सच में नहीं करना। मैं बोल देता हूँ सैलेड। हैशटैग कर्मयोग। बहुत कुछ एडिट करके बैठ गया पीछे। डिस्कवर हु आर। डिस्कवर हु यू आर कहता मातृभाषा सीखो, तो फिर क्या बोल रहा है इंग्लिश। ये गलत बात है। सहज की सब बोलने की भाषा। वो अमेज़न पर भी बुक का प्रचार कर रहे थे। हो गया सर जी खत्म। मैंने तो लेफ्ट ही कर दिया सबके। आप सभी का पुनः नमस्कार और अभिनंदन। और आज जो मैं बात अपने सुझाव और नमस्कार जी, वो है गीता का युवाओं के लिए महत्व। और मैं अभी पिछले 2 सालों से ये पुस्तक लिखने के बाद विभिन्न कम्युनिटीज में, समुदायों में इसको चर्चाएं करता रहता हूं, विशेषकर वहाँ युवा
कम्युनिटीज में मेरे साथ जो लोग होते हैं वो अगले लोग के ही होते हैं, 50 वर्ष ऊपर के लोग ही जुड़ते हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि गीता जैसी धरोहर का ज्ञान जो है हम अपने विश्वविद्यालयों में देना शुरू करें, और मैं तो कहूँगा इवन स्कूलों में भी शुरू करें एक बहुत ही अब्रिज्ड वर्जन, ताकि उनको एक नई दिशा मिल पाए। और आज मैं कुछ उसी संबंधित बातें करूँगा, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये कुछ एक मिथ्स है गीता को लेकर जिन मिथकों को दूर करना बहुत आवश्यक है। पहला बहुत ही पॉपुलर एक मिथ है कि गीता एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ है, और इससे परे कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ जुड़ा रहा हूँ जो कि अचानक ही गीता को कुरान, बाइबल इन सब से कंपेयर करने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ में कोई रिलीजियस बातें नहीं करनी है। और सत्य यह है कि गीता एक आध्यात्मिक शब्द उसका किसी धर्म जैसा आज समझते हैं, जैसा कि अजय जी भी बोल रहे थे, धर्म को रिलीजन के बीच में जो तय करने वाला रास्ता है वह हमारा अध्यात्म प्रोवाइड करता है। तो जो वेस्ट में, जैसे कि लाभ सर भी बोल रहे थे कि वेस्ट ने हमें कुछ डेफिनेशंस दी है और हम उन्हीं के द्वारा ही अपने आप को आकलन करते रहते हैं। तो रिलीजन वो नहीं है जो वेस्ट ने हमें बताया, धर्म वो है जो हम अभी गीता के माध्यम से समझेंगे। धर्म आता है हमारे पुरुष और प्रकृति के संयोग से, और जैसा हम गीता को समझते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि कृष्ण का उपदेश है और कृष्ण एक भगवान है, और नॉर्मली जो भगवान होता है वो धर्म को रिलेटेड होता है। तो ये बहुत बड़ा वितर्क है। तो हमें लोगों तक यह भी पहुंचाना है संदेश कि इसमें किसी धर्म को नहीं प्रचार कर रहे, हम किसी धर्म से संबंधित बातें नहीं। दूसरा एक मिथ है कि गीता पढ़ेंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, गीता पढ़ने के लिए आपका हिंदू आस्था में आस्था होनी बहुत आवश्यक है। या फिर गीता को अध्ययन के जनमानस के लिए भाई अब आपने अपनी जिंदगी जी ली, आप रिटायर होने वाले हैं, अब आपके जीवन में कुछ और या फिर गीता को अमल में लाना अत्यंत कठिन है। हाँ, गीता जो है बहुत पूर्ण ग्रंथ है, उसको समझने के लिए बहुत है चाहिए, लेकिन उसमें नगेट्स हैं, उसके साथ कोई भी एक दो नगेट खा लेते हैं, जैसे कुछ एक भी प्रेजेंट करूंगा, तो उनको प्रैक्टिस कराना बिल्कुल भी दुश्वार नहीं है। आप धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। या फिर यह है कि गीता के प्रत्येक श्लोक का एक ही पर्टिकुलर अर्थ है, और गीता हमें आगे मुझसे पूछे हैं, मुझे पता चले तो मैं जवाब दूँ। मुझसे बड़े हैं बैठे हुए, तो मैं कैसे जवाब दूँ? सर बोल रहे गीता से नौकरी मिलेगी। क्योंकि आपको परिपक्व बनाती है, तो जब आप परिपक्व नहीं होते तो आप श्लोक को एक तरह से समझते हैं, जब आप ज्ञान धारण कर लेते हैं तो श्लोक का अर्थ तो इन काइंड ऑफ डिस्क्लेमर से लगे बहुत आवश्यक है कि वे सभी जो गीता का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं संकोच करके दूर जाते हैं, वो इन सब मिथ से अपने आप को दूर करें, क्योंकि अल्टीमेटली गीता एक सेल्फ हेल्प गाइड है। सब कुछ बताने के बाद भी भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को सारा उपदेश दे दिया, गीता की ब्यूटी सी बात है कि गीता कंप्लायंस नहीं सीख करती, गीता ये नहीं कहती ये करो ये मत करो, ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। सब करके कृष्ण को क्या बोलते हैं, लास्ट में व्यक्ति किसी प्रकार के मैंने सारा ज्ञान तेरे को दे दिया है, अब जैसे तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद आपने स्वयं जो है कई तरह से आपने मुक्ति हो जाती है, आपको बहुत मोह आपका चला जाता है, स्वयं अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि गीता को हम सिर्फ एक गाइड के तौर पर देखें कि हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये नवयुग के लिए और हमारे युवाओं के लिए छंदों के लिए क्या है। तो मैं अक्सर बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, और मेरा जो गीता का सारा चर्चा होती है, संवाद होता है, वो रोजमर्रा के उदाहरणों को लेके ही होता है ताकि आप समझ पाए। मैं रोजमर्रा की बात नहीं करूंगा, वो थ्योरेटिकल बात करूंगा, लोग हो जाएंगे नहीं। इस सेशन गीता चल रहा है। मान लीजिए आपको 20 करोड़ की लॉटरी मिली, वो लॉटरी आप कब लेना चाहेंगे? जब आप युवा हो, 20-25 साल के हो, या जब आप बिल्कुल वृद्धावस्था में हो। बहुत ही जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे जो आपको 20 करोड़ की लॉटरी है वो आपको आपके युवावस्था में मिले, आपके पास पूरा जीवन पड़ा हो, उसका उपयोग करने
उसको जैसे आप चाहते हैं वैसे 10 करोड़ चाहिए। तो गीता वही लॉटरी के समान है, जितना उसका जवाब मिल गया। नौकरी सोच रहे तो लॉटरी है, वो भी 1-2 लाख का नहीं, करोड़ों का, 20 करोड़ का। आपको पता था क्या यही बोलने वाले हैं? जितना भी पहले पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया, उस समय भी यही होता है, ये कार्य में 10 साल में। तो ये बहुत आवश्यक है अपने छात्रों को, युवाओं को इसका संदेश देना, क्योंकि हमारे छात्र ही हमारी अगली पीढ़ी है, हमारा ट्रेजर है, हमारे असली संपदा वही है। किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में उसके नवयुवकों का बड़ा हाथ होता है। तो जितना जल्दी उनको हम एक ऐसा रिसोर्स दे सकेंगे जिससे वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके, उतना जल्दी वो ना केवल स्वयं लाभान्वित होंगे पर अपने राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। तो यदि अगर हम जितना जल्दी मिले उतना तब तो सर मैंने टीचर्स डे पे सबको 20-20 करोड़ दिए हैं, 1-8 करोड़ वापस कर दीजिए। बाकी लोग भी, पर यूथ तो है ही, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, हार्मोन्स भी कर रहे होते हैं, आप ट्रांजिशन में हो रहे होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, आपको करियर में सेटल होना होता है, नए नए रिलेशनशिप बढ़ रहे होते हैं, नहीं बुझ लियो, आपको करियर में आगे बढ़ना होता है, आपको एग्जाम्स पास करने होते हैं, सब चीजों को मिला के खूब सारा स्ट्रेस अटेंडेंस फिर होता है फोकस ऑन करियर सक्सेस। हर कोई इस रेस में शामिल है कि मैं आगे कैसे निकल जाऊं और मैं कितना आगे निकल जाऊं, और वो हमें बहुत स्ट्रेस देता है, और वो हमें कई बार बहुत हमारा फोकस भी लूज कराता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं, कभी इधर ट्राई कर रहे हैं, कभी उधर ट्राई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, कभी सीए कर रहे हैं, कभी मेडिकल, कभी इंजीनियरिंग, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस ओर जाएं और उसमें सक्सेस कैसे पाएं। क्या हमें एक 60 लाख की करोड़ का पैकेज मिल जाएगा वो सक्सेस है, या मेरे को स्टार्टअप की कंपनी मिल गई वो सक्सेस है, या मेरे को बिना कुछ करे किसी ने पैसा दे दिया वो सक्सेस है। तो ये क्या करना, बच्चे ही पढ़ाना है। हाँ रिलेशनशिप्स जितना बोलो, कहा जाए उतना बेटर, क्योंकि अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि 13-14 वर्ष की उम्र में बच्चे भी किशोर भी नहीं हुआ तो और रिलेशनशिप उनको आगे सपने में भी नहीं। वो इतने मैच्योर नहीं होते कि रिलेशनशिप को संभाल पाए, समझ पाए, लेकिन एंटर कर जाते हैं। कंफ्यूजन और फिर क्लियर कर इतने तो हमारे रिलेशंस नहीं होते जितने हमारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में उसका स्ट्रेस रहता है, वो अलग। रिलेशन एडिक्शन तो और ब्रेकअप लाइफस्टाइल कैसे होगा? ये एक ऐसी चीज है जो मेरे को शुरू से बहुत व्यथित करती रही है। जब मैं खुद आईआईटी में था और आईआईटी में था, मैं अपने दोस्तों को भी देखता था, 3rd ईयर में आईआईटी में, 4th ईयर में, ड्रिंकिंग वाज अ नॉर्मल बिहेवियर इवन दैट वे बैक इन द 80s। आजकल की बात करें तो मैं अभी गुड़गांव में हूँ, हरियाणा में हूँ। हरियाणा में आप चले जाएंगे रोड साइड इतने शराब के ठेके खुले हुए हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ घर ज्यादा है कि ठेके ज्यादा है। और ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है, मॉल जैसे ठेके तरह का लाइफस्टाइल कार्ड देते हैं, एडिक्शन कार्ड होती है ना, शराब या लिकर के प्रति देखना से गिरी नहीं है। आपको 3 मॉल सिर्फ हमारे युवा आपको इतने बड़े बड़े ऑफर 4 पे 3, ये सारी चीजें 4 पे 3 से होती जा रही है कि वही 4 पे 4 आपके रिलेशनशिप 4 होटल पे 3 अंडे फ्री रिफ्लेक्ट करती हैं और फिर आपके स्ट्रेस को। एंड फाइनली लाइवलीनेस, आप कितने जीवंत हैं। जैसे लाभ साहब बता रहे थे अभी कि युवा तो है लेकिन उनका बचपन छीन लिया है, वो प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, या फिर वो अपने बस पढ़ाई में लगे हुए किताबें नहीं उठा रहे हैं, या फिर अपने काम में लगे हुए हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा कैसे वर्क लाइफ बैलेंस के चलते 2-3 कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी खबरें आई कि somebody passed away क्योंकि इतना वर्क लाइफ इम्बैलेंस था। तो ये युवा का स्ट्रेस के अलावा एक और मेजर चैलेंज है, कितने युवा हैं जो हमें नहीं पता हमारा पर्पस क्या है। लाइफ फुल ऑफ लाइफ दिखते ही नहीं, उनमें जोश नहीं दिखता है, उनकी आंखों के नीचे काले पेपर छुपे होते हैं 20 साल की उम्र में। ये सारी चीजें जो है इन सबसे हम अपने युवाओं को मिला सकते हैं। और आज मैं छोटे से चलती दूंगा कि किस तरह से गीता में इन सब के लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आप उस सब ऐसे हुए मंत्र पढ़ के आपको उचित हो जाएगा, उसको ज्ञान को धारण करना
पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज एक शुरुआत करते हैं अच्छा कमाल हो गया। दिशा और मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा कि इस वार्तालाप के माध्यम से आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जिसमें हम चाहे तो एक दिन का गीता का सार सेशन बच्चों के लिए प्रेजेंट एक दिन के या लिए 2 दिन की वर्कशॉप करें या फिर एक मंथ कोर्स कुछ करें। बेसिकली जिस बच्चे गीता पढ़ने के लिए स्ट्रेस हो जाएंगे। एक दिन का हम कोर्स कैसे भी कंटेंट उसका गीता पढ़ने का स्ट्रेस आ गया। गीता जैसा आध्यात्मिक शब्द का संदेश जो है हमारी नई पीढ़ी तक अवश्य गीता में अनेकों ज्ञान होती हैं। आज स्थित प्रज्ञ पुरुष प्रकृति कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सत्व रजो तमो गुण स्वभाव अधिभूत अजय विद्या कार विकार मकार क्षेत्र क्षेत्र ओम तत्सत साकार निराकार। ये अगर हम बात करते हैं तो एक एक जो नगेट है उसके लिए एक प्रकार की कवरेज। एक सेकंड सर, जिन लोगों को भी कोई सवाल पूछना है जिन्होंने हैंड रेज किया आप अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल दें और अपना नाम अनाउंस कर दें, देन वी विल आस्क यू क्वेश्चन आफ्टर delivering the lecture please sir please go ahead। धन्यवाद। तो एक नगेट के ऊपर एक यूज केस बन सकता है, एक केस स्टडी बन सकती है। और मैं एक बहुत ही माइक्रो केस स्टडी अगर आपके साथ शेयर करूं तो एक मेरी परिचिता थी हु लॉस्ट हर हस्बैंड एंड वो समझिए आज 3 साल तक बहुत गहरे शोक में थी। ऐसा कि जैसे उन्होंने कल ही अपने हस्बैंड को कोई क्वेश्चन वो कितनी तरह से बताने के बाद ये नगरल सेशन का कोई क्वेश्चन नहीं यही होती कि नहीं अविनाश अपने पे बीते थे तो सेकंड सेशन से चलेगा आ जाते हैं। और फिर मैंने उनको थोड़ा सा किताबा जो सवाल था उसमें सिर्फ इतना बताया कि आपको पता है आपको इतना शौक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप शौक को पकड़ के बैठे हैं। ये विधि का विधान होता है कि आप कितना सुखद करना वो ऐसे नहीं होता कि कुछ रिजल्ट है हो रहा है और वो कर्मों का फल मिल गया। जैसी एनर्जी हम कैरी करते हैं वैसी एनर्जी तो यदि आपके पास आज कुछ उससे चिपक गए कूद के कुआ हो गए तो आपको वो पकड़ लेता है। इसलिए वो चीज चाहती है तो आपको या फिर आपकी कोई फ्री चीज आपसे खो गई आप उस चीज को पकड़ के बैठे होते इसलिए आपको दुख होता है। तो आप शौक को पकड़ के बैठेंगे फ्यूचर में उठने जब अपना शौक दिख रहे हैं तो ये आपका शौक आज का नहीं है, ये आपका शौक पूर्व जन्मों का है। कम से कम आगे की जिंदगी में इस शौक को पकड़ के मत बैठिए। मैं आपको ये सब नहीं कह रहा कि आत्मा ऐसी होती है शरीर ऐसा होता है, वो आपको लगेगी थ्योरेटिकल बात है। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात से कितनी है कि यदि आज आप अपने पति जो पूरी जिंदगी कर रहे हैं उनके निधन के बाद कितना शोक करते हैं आगे के लिए जैसी भाषा आप बोलेंगे वैसा ही आपके साथ सामर्थ्य होगा। अगर आप चाइनीज बोलेंगे किसी फील्ड में तो आपके पास आके चाइनीज ही बैठेगा, आप जापानीज बोलेंगे तो जापानीज बैठेगा। तो यदि शोक की घड़ी में आप शोकातुर रहेंगे तो शोक ही आपके पास सबके साथ बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शी रेजोनेटेड विद दैट एक्चुअली ये बात मुझे समझ में आती है कि मैं जितना अपने आप को शोक में डुबा के रखूंगी उतना मैं वैसी ही एनर्जी की पाएंगे। तो इस तरह के बहुत माइक्रो केसेस और केसेस बनते हैं एक एक नगेट के ऊपर। पर अगर हम इन 5 चीजों को ही लेकर चले जो हम युवाओं को एड्रेस कर सकते हैं तो स्ट्रेस का मूल कारण होता है युवाओं को किसी एक स्थिति में अपने को पाना जिसको सब निकल नहीं सकते या जो अनअचीवेबल होता है। और इसका साक्षात उदाहरण है स्वयं अर्जुन विषाद योग। गीता शुरू हुई स्ट्रेस से होती है, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को भी स्ट्रेस हो गया। तो ये मैंने कुछ झलकियां दी हैं जो अपनी पुस्तक से जिसमें आपको ये भी दिखाई देगा कैसे सहज विधि है। तो जब कृष्ण अर्जुन के सामने थे और युद्ध होने वाला था तो कृष्ण से बोले हे अर्जुन सबको आगे बढ़ाए युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाए। ऐसे में कृष्ण मुस्कुराते हैं मंद मंद मुस्काए केशव इच्छा अर्जुन जान अपने रथ को रणभूमि के बीच दिया स्थान और बोले देख सामने भीष्म और द्रोण है अब लड़ इनसे। भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष। गीता तो संस्कृत में लिखा है ना? कविता है इन्होंने लिखा होगा। खाली लाओ
स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस का कारण क्या था जैसे कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर मेरे को मॉडल इंटरेस्ट ये रतन भी आपका प्लेट लिया है ऊपर से बहुत सही इसको मैं कैसे करूंगा और आप शिकायत कर सकते चलो 4-5 दिन बाद में दिखा देते हैं यही रंग होगा का मूल कारण होता है पेपर पता नहीं होता है एस्टिमेट करना चाहता है कि मुझे किस चीज से लग रहा है और आपको किस पेपर हिसाब फाड़ से के रख लिया उसमें मिला नहीं दोबारा समझ में आ गया ये उससे और स्ट्रेस को दूर करने के सर डाइटिंग यार दिमाग खराब कर रहा ये साथ बैठी हो तो तुमको लेके उसको दे देना चाहिए उसके नाम पर स्ट्रेस कब होता है जब अपना कर्म से मुक्त होते हैं क्योंकि अगर हम कर्म में अपने आप को घुमा देंगे तो हमें स्ट्रेस ध्यान से लेना मैं यही कर लगा एंजॉय करते हैं हमारा फोर्स फल की तरफ वो से भी तो है लो कर्म देना अधिकार है ना फल का उधर रखिए और कर्म ना करने हेतु कभी ना हो यदि आप बच्चों को बताएंगे कि रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट एफर्ट इज इम्पोर्टेंट उनको हम एक तरह से फेलियर और सक्सेस के बीच का भेद बता पाएंगे ताकि वो ऐसा ना समझे कि आउटकम सही परिभाषा खा लो फिर वो करे कुछ मैं तो फोटो में आएगा पकौड़े खा दिन भर जितने ही शीत करेगा कर्म करना पड़ेगा तो जब तक हम अपने कर्म फल के बंधन से स्वयं को बांधते हैं वो हमें ताप देता है वो स्ट्रेस देता है जब हम अपने चित्त को निर्मल रखते हैं यही उसमें शीतलता प्रोवाइड करता है तो स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करने का एक ही तरीका है वो है अपने आप को कर्म फल से मुक्त करना और विधिवत जीवन धर्म जहाँ हो विपरीत स्वभाव उसके अमल से उत्पन्न है विस्तार चाहे वो छोटी सी एग्जाम्पल हो कि मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक उठा लिया जो मेरे को इजी लग रहा है बट वो मेरे बैकग्राउंड का नहीं है चाहे साइंस का है चाहे मैथ का है बर्फ गिरा या बर्फ हिस्ट्री का है लेकिन वो समझ नहीं आता है स्नोफॉल हुआ वो खत्म भी हो गया मैंने आपको बोला था वो तो बताइएगा मैं लाऊंगी ना तब अपना डालूंगी चाहे हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पे तब हम स्ट्रेस होगा क्या हुआ कैमरा दूंगी क्योंकि हाँ, हाँ। चालू कर दो कोई लालच में आ गई थी। बेद आ रही है अगले देखेंगे सब इसमें कुछ अपग्रेड हो जाएगा लेकिन वो चीज हमारी प्रकृति के विपरीत है तो ये हमें इसलिए टेंशन होते हैं जिससे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं अगर हम करियर और सक्सेस की बात करें इसका मूल कारण है एस्ट्रोलॉजर होता है ना क्योंकि हम सक्सेस को नापते हैं कि हमारा मटेरियल टर्म्स को कितना इन लोगों को राग द्वेष पनपते पलते घूमते हैं इनको वश करने से जीवन के फल मिलते हैं देख रही किंतु मन में लोभ विराजे रजोगुण बढ़ता जाए नए कर्मों की वृद्धि नित्य अशांत कृष्ण घर लाए तो जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है ना वो टोटली रजस से प्राप्त है गीता में 3 लोगों की बात कर रही है सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक होता है जिसमें बिना किसी फल की इच्छा के चटनी खाओगे त्याग की भावना के साथ मैं चटनी लेगा कोई मुझे वही करना आता है मुझे वही अच्छा लगता है जरूर लेकिन जब हम रिटर्न हमको कोशिश करती है टास्क दिए जाते हैं इतना कंप्लीट करो इतना रेवेन्यू जनरेट करो तो वो हमारे को कहीं ना कहीं ग्रीड से प्रॉफिट करता है और हमें स्ट्रेस देता है कि मेरा टारगेट कंप्लीट इट इज नो लॉन्गर अबाउट कि मैंने काम कितना किया इट इज ऑल अबाउट मैंने रिजल्ट इसलिए जब भी हम अपने करियर और सक्सेस को करियर सक्सेस का डेफिनेटली है आउटकम से मानेंगे रिटर्न से मानेंगे तब तक हम कृष्णा और अशांति के उसमें और चौथा है तीसरा है कर्म चाहे अधिष्ठान कार्य करता आधार नाना प्रकार की चेष्टा और ये ऐसा रूब्रिक और फ्रेमवर्क के गीता में ऐसे रूब्रिक्स भरे हुए हैं जिनमें से एक ये है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपको 5 कंपोनेंट्स चाहिए चेष्टा और बाय we can talk in greater detail later but idea is ये सारे गुरु मंत्र हमारे मैक्सिमम कितने लोग हुए जरूरत है सिर्फ चावल में लाना आप अगर रिलेशनशिप की बात करें तो टिपिकली रिलेशनशिप कैसे बनती बिगड़ती है एक हम बाहर तीन जो थे बॉलीवुड में क्या दिखाएंगे ये बड़ी खूबसूरत है इसलिए मेरे को अच्छी लगती है नंबर अब कहीं ना कहीं किसी गुण से बात देते हैं वो इतना अच्छी लगती है उसका भौतिक स्वरूप अच्छा लगता है हाँ कहती है अच्छा है कोई हमें काला दिखाई देता है मोटा दिखाई देता है पतला दिखाई देता है कोई सुंदर दिखाई देना तो उनसे ना विचलित हो कोई बाल मुंह पे लगता हुआ उनमें जो कुछ नेट खत्म कर दिया मेरा रिलेशनशिप की
अनलिमिटेड नहीं है। ये देखो ये लग रहा है जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, लेग पीस, वो समुद्र में होता है ना। क्रैब, क्रैब क्रैब खाएगा? जग में जो भी सुंदर देखो बंधु या शोभा उस सबको मेरी छवि से जी चलो हम एक साकार निराकार ट्रस्ट के अंदर रिलेशनशिप्स का बेसिस फिजिकल अट्रैक्शन या सुंदरता को ना बनाकर एक एकदम अटेंडेंस कैसे करनी है? ओह, चैट बॉक्स में देखो, इसने किया। रीजॉइन करो। अरे वहीं पे रीजॉइन, मेरे को कोई नहीं लगा। वो अपने आप हो जाएगा। माइक ऑफ करो। कैंसिल क्यों किया? जी सर, आप लोग जान दो यार, मेरा नेट का तुम्हारा है सात्विक का आहार है होता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि देता को करता है। राजसी खाता कट्टा खावा गरम जलन पर तीखा, उसका जीवन कष्ट पीते हैं और शोक से। जो भोजन हो वासी गंधर्व अशुद्ध या कंचुका, ऐसा केवल नाम सिखाए। इसको आप किसी खाने को मैप करके देख लीजिए, किसी थॉट को मैप करके दीजिए, किसी कंटेंट को मैप करके दीजिए, हमेशा खराब। 3 डॉट पे क्लिक करो, क्योंकि अगर हम नीचे में इसमें क्या ये खोलो मैसेज, उसी का चिंतन करेगा, तो चाहे वो सृजन हो, यार नहीं सर, चाहे वो पास कर दो ना। चाहे वो कंटेंट हो, कोई रिसर्च है जो बहुत पहले हो चुका है, हम बैठ के अभी उसे पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिसर्च रीसेंट नहीं, वो फ्रेश नहीं है। तो ये जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, ये बहुत जरूरी है कि वो फ्रेश हो, वो पोटेंट हो, वो हमें एनर्जेटिक करे, rather than कोई चीज प्रोसेस्ड हो, या वो पुरानी हो, या गंदित हो, या फिर बासी। अजय सर ने और यदि हम लाइफ अटेंडेंस शीट डाला। बात करें, तो जीवन का एक ही उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है अपनी चेतना को और उजागर करना, अपने अंदर और जाना, और जो हमारे पास जो का थोड़ा धूल छड़ी है हमारी चेतना के उसको साफ करना। और इसीलिए आवश्यक है कि हमारे जितने भी कर्म हैं, बिना दिमाग के करें, उससे हमें लाइफ में पर्पस। अगर हम अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं, स्वार्थ के लिए या किसी परिणाम के लिए, उससे हमें कभी भी जिसे बोलते हैं निर्मल आनंद नहीं मिलेगा। तब अर्पित करना कर्मों को 5 GB का रिकॉर्डिंग हो गया 1 घंटे का। देखो 4.54 GB। ये एक ऐसा नगेट है कि बच्चों को अगर समझाएंगे, जो भी कर रहे हो उसमें देखो तुमने ये कार्य पूरे विश्व के कल्याण के लिए अर्पित किया या अपने लिए आप उससे पर्पस या ब्रह्म गुणा के अक्षर को प्रकट हुआ हमारे कौन से कर्म है जो हमें कर्म करने से भागते हैं। सिर्फ वो जिनमें त्याग की भावना नहीं हो, जितना हम अपने कर्म में त्याग की भावना रखेंगे, उतना वे हमें कर्म करने से मुक्त करेंगे और मोक्ष को मिलेंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष लेंटर फील करना, आप इसमें से अच्छी सुगंध या कोई चीज हमारे पास पड़ेगा ना, जिससे हमारे अधिक से कर्म करना सीखना है। कर्म अकर्म विकर्म का परिचय करने की देर करे पछताएगा नहीं है। तो यदि हम इन पांच चैलेंजेस को ही अगर लेके चले, जिसमें स्ट्रेस है, रिलेशनशिप है, लाइवलीनेस है, पर्पस है, हेल्थ है, डाइट है, उसी के लिए हमें गीता के इतने नगेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम डिस्कवर कर सकते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं बुद्धिजीवी क्यों हूँ, या मेरी मन बुद्धि क्यों है, या
ऐसा क्यों होता है कि मेरे को फलाना खाना जो है बहुत पसंद आता है, बस मैं फिसल जाता हूँ, मेरे को मीठा खाना ही खाना होता है, या ऐसा क्यों है कि मैं किसी गुस्से वाले आदमी को सहन नहीं कर सकता हूँ, को सहन नहीं कर सकता। तो जितना हम आत्मसात करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, उतना हमें उनके उत्तर मिलेंगे और हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही सुखी रहेगा। तो गीता जो है हमको कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से दिशा प्रोवाइड करती है। तो इसको मैंने फिजिकल एक प्रैक्टिकल रूप से ऐसे समझाया है, जब हमारा बैलेंस होता है ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो कर्म के समीप जाएंगे, जितना मोक्ष प्राप्त करेंगे, जितना हल्के होते जाएंगे, उतना ईश्वरीय अपनाते जाएंगे। अगर भक्ति नहीं हो, ज्ञान है और कर्म है, हमें पता है क्या करना और कर्म भी करेंगे, अगर भक्ति नहीं तो जो ये हमारे फ्रेमवर्क से डिकोड करने की वजह से क्यों कर रहा है नहीं है, समाज से जुड़े लोगों का काम है, वो इसके संदर्भ हो जाते हैं, या तो प्लेन में शेड हो, या तो जैसे बोलते हैं अतिरिक्त हो, कृष्णा है उसका कर्म है, भक्ति और कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं, इसका मतलब आप बहुत कर्म कांडी अंधविश्वासी नियमितता के साथ कुछ तो करते हो, लेकिन आप सीधे पता नहीं कर क्यों रहे हो, लेट जाए तो कैसे करते हो, तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो ही नहीं, लेकिन ये आपको अधर्म की ओर ले जाता है यदि आप भक्ति और कर्म की ओर ऊपर ज्ञान की ओर नहीं छोड़ते। और लास्टली अगर आप भक्ति और ज्ञान से परिचित हो, लेकिन कर्म आपका शील है, इसका मतलब है तो आज आपको पता है क्या करना है, आपको ये पता है क्यों करना है, भक्ति पूरी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, या तो आप आलसी हो, या अनकंफर्टेबल समझते हो किसी और का काम, या काम से कोई ये काम कोई और करेगा, तो ये विकल्प हो जाता है आपके। तो जितने ये एक डॉट्स अलग अलग दिखाए गए कि हम सब का ज्ञान, भक्ति और कर्म, योग का सब सब्सटेंस है, जैसे बोलते हैं डबल लॉक। तो जितना हमारे पास कौन सा इंग्रेडिएंट कम होगा, उतना हम उसको अपने से दूर करेंगे, और वो हमें बताएगा कि हम जो है कितना पास हमें जाना है, कितना दूर हमें जाना है काम की ओर, जिससे हम वो दिशा प्रोवाइड कर पाएंगे कि तुम्हें ज्ञान की कमी है या भक्ति की क्या कमी। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर कुछ प्रश्न होंगे तो वो बिल्कुल आई बी हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चंस, बट मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी निकालेंगे जिससे गीता के प्रति संवाद जो है वो बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अवसर प्रोवाइड करने के लिए अजय जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में श्रीमद् भगवद गीता के विविध पक्षों से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सेशन सबने बड़े ध्यान। चंदन कुमार जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए, अपने को अनम्यूट करके। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय मीरा सर, ये बातों को मैंने आपके साथ करने का हम लोगों ने प्रयास किया। सर प्रश्न नहीं है सर, मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, कुछ समय के मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित की गई है, लेकिन एक तो जरूर मन में अंतर्द्वंद चल रहा है सर कि विगत 30 वर्षों में हम लोग बहुत नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन कुछ संस्थानों में नैतिक मूल्यों का आचरण हम लोगों को नहीं सिखाया जाता। हो सकता है कि हमारी कथित शिक्षा नीति हम पर अभी भी काफी हद तक प्रभावी रही हो, लेकिन कुछ एक ऐसे भी विचार हो सकते हैं सर कि जैसे हम तथाकथित संस्थानों में एक नैतिक मूल्य और आचरण नहीं सिखाया जाता है, तो क्या हम भागवत गीता को एक आदर्श वाक्य और आदर्श पुस्तक मान करके हम नई शिक्षा नीति में कुछ समावेश करके कुछ सीख सकते हैं कि नहीं? क्या ये विरोधाभास नहीं हो सकता है? हालांकि ये करना हम लोगों के लिए एक गौरवशाली संभावनाओं का एक द्वार खोल सकता है। हालांकि मैं थोड़ा सा विषयाकर इसलिए हो रहा हूँ कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बैंक ने भी 2010 में अपना एक निर्णय दे चुके हैं उनकी बेंच की, हमारी जो है भागवत गीता एक आदर्श ग्रंथ है, तो संभवतः क्या हम अपने पाठ्यक्रमों में भागवत
बच्चों को प्रेरणा के लिए एक क्यों नहीं एक आदर्श पुस्तक के रूप में स्थापित कर सके। ओवर टू यू सर। धन्यवाद चिंतन जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान हमें सिर्फ इस बात का रखना है कि ये बहुत ही पूर्ण ग्रंथ है, जैसा मैंने कहा। तो अगर उसको रख देंगे टेक्स्ट को जैसे तो बच्चे बहुत कम समझ पाएंगे। आई थिंक हमें बेसिक से पहले कुछ सवाल शुरू करें, पहले कुछ अलग इंट्रोडक्शन करना शुरू करें। And once the ground is fertile, then we can definitely have some lessons to the lessons को ये मेरा बात है। वेरी ट्रू सर। चंदन जी, आपकी बात, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है। आपने जो बात रखी, देखिए हमारी गीता में कहा गया है लीडरशिप सबसे पहला पॉइंट बताया गया स्ट्रॉन्ग लीड टू लीड बाय एग्जांपल। Importance of developing a high degree of equanimity and understanding the principle of mutual dependence। तो अगर कोई भी चीज शुरू करनी है तो पहली चीज जो बताई गई स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड बाय एग्जांपल। हमें खुद उदाहरण बनना है कि हम अपनी ड्यूटीज को किसी के साथ निष्काम करने की बात की और हम सब कुछ जुड़ा था। तो देखिए आगे एक जगह आता है यज्ञा सर्वश्रेष्ठ मंत्र देवे सर्वजन तो लोग किसका अनुवर्तन करेगा? वो एग्जाम्पल सेट करेगा और एग्जाम्पल सेट करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। और शिक्षण संस्थान निकल होंगे जिस भी रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में, डीन के रूप में, यूनिवर्सिटी के हेड के रूप में, जिस रूप में भी हमें जिम्मेदारी मिली है, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और मैं पूरा मानता हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को इसेंशियल टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता ये भी एक पेपर स्किल बेस्ड या वैल्यू एजुकेशन में रखा और वो यूनिवर्सिटी के बाकी सारे बच्चे पढ़े। अच्छा लगता है तो 70 to 80% स्टूडेंट्स इनरोल्ड स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे सर ने कहा ना कि हम हजारों साल पहले कही गई बातों को सिर्फ कह देने से नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो हजारों वर्ष पहले कही गई बात है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यानी टाइम और स्पेस का ध्यान रखते हुए अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट सबके सुख के लिए आता है, हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम के लिए आता है। और जैसा आपने कहा कि उसको हाईकोर्ट में माना कि ये ग्रंथ क्योंकि धर्म से जोड़कर नहीं देखना। हमारे यहाँ तो कहा गया ना ज्ञान कहीं से भी किसी चीज से आए जिससे सबका भला हो। तो इन संदर्भों में अगर आप गीता को देखने का प्रयास करेंगे तो गीता के अंदर के सारी बातें जो कही है कि क्या जरूरत है और इसके लिए हमें अंदर और बाहर का जो संतुलन आवश्यक है वो संतुलन, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है हम अपना फिजिकल फिटनेस बहुत ध्यान दे रहे हैं तो हमारी इंटरनल जो बैलेंस होनी चाहिए फिजिकल बैलेंस के साथ यानी माइंड बॉडी और सोल का जो बैलेंस है। अगर हम सोल को नहीं मानते तब भी माइंड और बॉडी का बॉडी का जो बैलेंस है अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो हम अपने अपनी तकनीक पहुंच सकते हैं। और हमारी यहाँ से कहा गया पहला सूत्र है ना कि क्या बोलते हैं पहले अध्याय का पहला सूत्र है जिसमें कहा गया चैतन्य आत्मा, लेकिन वहां पे आत्मा के बारे में चैतन्य जो है वो आत्मा है, लेकिन आप तीसरे अध्याय तक पहुंचते हैं तो बात आ जाती है चित्त मंत्र, यानी आप चित्त को अपने माइंड को माइंड ही मानते हैं उसके ऊपर जाएंगे। जैसे आप सबने बताया तो ये नहीं ऐसा है कि मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चेतना आपका चित्त जो है वही मंत्र बन जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से है और इसलिए कहा गया उद्यमो भैरव और शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारक की बात की गई। तो शक्ति चक्रों का संधान करना है और इसी दिशा में मुझे पूरा लगता है कि आने वाले समय में जैसे आज के 2 लेक्चर हुए आगे भी ऐसे और लेक्चर्स आएंगे और बहुत सारे हमारे मन के अंदर जो तमाम सवाल चलते रहते हैं हमारे मन में भी चलते हैं कि एकेडमिक लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, अगर इस तरह से चीजें इंप्लीमेंट हो जाए तो और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब हम खुद उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो हम कठिनाइयों को समझते हैं और फिर मुझे समझ में आता है कि जहाँ से हम चले थे अगर हमने अपनी सारी ड्यूटी जोन की होती तो शायद मैं अपने कुलीग से भी वही एक्सपेक्ट करता और तब शायद इसको हम सोचते हैं कि एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन का रोल ले पाएगा, एक परफेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल ले पाएगा, उस दिशा में हम पहुंच पाएंगे। अब मैं अपने स्कूल के डीन प्रोफेसर अश्विनी कुमार नंदा सर
कैसे चलेगा मेरा तो बताओ। आज के पूरे इस सेशन के ऊपर अपना अध्यक्ष प्रोफेसर अश्विनी कुमार। Thank you, Ajay ji. Can you hear me? Yes, sir. So nice and to be part of this faculty development program, जिसका foundation हमारा CCRC department not only in this region but पूरा देश में एक बहुत बड़ा है ना flag bearer जैसे काम कर रहा है. So this department, congratulations to the department and led by an excellent team, Dr. Niranjana Bhandari and Dr. Ajay Singh, who is now anchoring the whole program in the past session. And there are other faculty members, Rituraj, Smita ji, Amita ji, and Ashwini ji. It's an excellent team, and the kind of workshop you have thought of, that is, I think it will need a big day. And we all learned. I was just listening to opening lectures, and they are quite insightful, and the kind of vast area they covered. It gives us a lot of deep perspectives into what is happening and how this Indian knowledge system can be made much more relevant, not only for the education and academics, but also how they can really add to our holistic development, and they can also make our day-to-day life living easier, productive, and meaningful, and also they promote critical thinking among the students, as we have been listening and we have all realized for a long we had neglected this part of our cultural heritage, this part of our own tradition, and a time has come we must recognize them and we must take them into our own fold. And thank you for the department for being torch bearer of this Indian knowledge system course and this perspective in the academic world, particularly in the echelons of higher academics. Thank you, Ajay ji. And I'm so proud of this department and because of your presence in the School of Humanities and Social Science. This gives really a new dimension, and there are a lot of participants and very pertinent questions have been raised, and some of the issues, the way Ajay ji you have summarized and put a new dimension. I think these are all interesting areas. We are all looking forward to coming days because this is a continuing activity, continuing for some more days, and I hope all others will join. And thank you for being. And I also owe a lot of allegiance to my vice chancellor, who has been giving his patronage this kind of events. Thank you all, and I must thank from my whole bottom of heart Dr. Vedana and Professor Avinash Kumar, when you gave really an excellent exposition of our own tradition, of our own path. Thank you, Ajay ji. Thank you, Niranjana Madam, for giving all this, and thank you all the participants. Over to you, Ajay. Thank you, sir. Thank you for chairing this session. Now I would like to invite Dr. Rajiv Rituraj, Associate Professor, Center for Comparative Religions and Civilization, to deliver vote of thanks. सर की थैंक यू अजय जी। आवाज आ रही है अजय जी? Yes, sir. सबसे पहले तो हम अपने वाइस चांसलर गुरु जो हैं प्रोफेसर संजीव जैन जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के इंस्पिरेशन से हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, उन्होंने फंडिंग की है और एक आइडिया जनरेशन के लिए भी प्रेरित किया है। अभी अब नहीं है लेकिन उनकी प्रेरणा से। फिर मैं प्रोफेसर बैजनाथ लाभ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाइस चांसलर साची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिक एंड एथिकल स्टडीज, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो पैटर्न अभी चल रहा है उस पर उन्होंने अपने व्याख्यान दिया। प्रोफेसर कपिल कपूर जी जो पायनियर हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के, वो नहीं आ पाए, नहीं हाजिर हो पाए।
उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शुरू में हाँ कहा था, इसलिए हम लोगों ने और इंस्पायर होकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर अविनाश कुमार जी ने तो पूरे गीता को हमारे सामने इस तरह से रखा जैसे लगता है कि हम भी अब गीता पर कुछ कार्यशाला या कुछ और तरह के प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा। लास्ट में प्रोफेसर ए के नंदा जी जो हमारे डीन है, वाइस चांसलर की जगह आए हुए हैं और उन्होंने हमें उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे डायरेक्टर निरंजना मैडम आज के जो कन्वीयर कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सारे फैकल्टी मेंबर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दो चीजें हम लास्ट में बस यहाँ पर एक व्यू अपने मन में जो चल रहा था उसके लिए रखना चाहते हैं। हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम के बात बहुत कर रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर लिखता है कि हमारी सेना कम थी, उनकी सेना ज्यादा थी, फिर भी हम जीत गए। फिर उससे पूछता है कि क्या रीजन आपको लगता है, क्यों जीत गए आप? आपकी सेना कम है। क्योंकि हम भारतीय टेक्नोलॉजी में पीछे थे उस जमाने में, एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हार गए थे। सेकंड 18वीं और 19वीं सदी में पूरे यूरोप में विद्वान इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि जो बुद्धिज्म नहीं पढ़ेगा, बुद्धिज्म पर कोई बुक नहीं लिखेगा, वो विद्वान नहीं होगा। जो इंडिक स्टडीज पर कुछ बुक नहीं लिखेगा, वो विद्वान नहीं होगा। थीम हमारा आगे आने के जंग वो लड़ रहे हैं। ये तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सबको बहुत धन्यवाद इस आने के लिए। हमें लगता है कि हम आधुनिकता को अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम से के आधार पर जरूर उसको एडॉप्ट करेंगे और हमारा प्रोग्रेस होगा। बहुत थैंक यू। धन्यवाद सभी का। अभी से हम कोई 10 मिनट बाद दूसरे सत्र के लिए जुड़ेंगे और सत्र में हमने अटेंडेंस का लिंक भी शेयर किया था। सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अटेंडेंस टाइमली मार्क करते रहें और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे सेशन में मौजूद रहें, क्योंकि अगर हम शिक्षक एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम छात्रों से क्या उम्मीद करेंगे। और पूरी कोशिश करें, जैसा कि मैंने मैसेज में भेजा था कि आप इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी, और आज क्योंकि ये इनॉग्रल सेशन था थोड़ा समय ज़्यादा लगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन अगला सत्र से कुछ 10 मिनट बाद अगले सत्र के हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भोपाल परिषद के निदेशक। तो आप सबसे आग्रह है कि 2-3 मिनट पहले जुड़े तो और अच्छा रहेगा। कितना टाइम दिया? 10 मिनट।